Praise the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. हम कसम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर पर हमारी मौत का वक्त आमीन। Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. जैसे कि खुदा में था पर हमेशा होगा आमीन। It was dedicated to the side of our expeditions, those who have moved abroad. Amen. आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. हमारी रोज़ रोटी आज में दे और जिसमें अपने किरदार को बख्शते तुम्हें हमारी कर्ज में बख्श और मैं आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. हम कसम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर पर हमारी मौत का वक्त आमीन। Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, हम Mother कसम of खुदा God, की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर पर हमारी मौत का वक्त आमीन। Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. हम कसम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर पर हमारी मौत का वक्त आमीन। Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. हम कसम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर पर हमारी मौत का वक्त आमीन। Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. हम कसम खुदा की माँ गुनहगारों के वास्ते दुआ कर पर हमारी मौत का वक्त आमीन। Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. हम कसम खुदा की माँ गुनहगारों के वास्ते दुआ कर पर हमारी मौत का वक्त आमीन। Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. हम कसम खुदा की माँ गुनहगारों के वास्ते दुआ कर पर हमारी मौत का वक्त आमीन। Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. हम कसम खुदा की माँ गुनहगारों के वास्ते दुआ कर पर हमारी मौत का वक्त आमीन। Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. जैसे कि खुदा की कब्र में होगा आमीन। Almighty हमें भगवान की हमारे गुनाह को बख्श हमारे गुनाह को क्षमा कर बचा तमाम साथ के John and Mabel Elvira, Joaquin Codanza, Joseph DaCosta, Peter and Teresa DaCosta, Rob and Natalie DiMello, Menino and Effie D'Souza, Arthur D'Souza, Trevor and Natalie D'Souza, Joaquin and Janita Vaz, Felix and Amy D'Souza, Levi
खुदा आपने आज हमें मौका बख्शा कि उसके सामने आकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। आज खुदा पास की कुर्बानी लिया और उसकी अच्छी सेहत के लिए खुदा की नजर की जाएगी। आज खुदा पास की कुर्बानी अब्बास मसीह के लिए खुदा की नजर की जाएगी। खुदा उसे हमेशा का आराम बख्शे। आज खुदा पास की कुर्बानी शुक्रगुजारी के तौर पर आरिफ बशीर और उसके सारे खानदान की तरफ से खुदा की नजर की जाएगी। आज खुदा पास की कुर्बानी अदनान मसीह के खानदान की तरफ से शुक्रगुजारी के तौर पर खुदा की नजर की जाएगी। आज खुदा पास की कुर्बानी शौकत महराज और उसके खानदान की तरफ से खुदा की नजर की जाएगी। तो खुदा ने उसकी बेटी की शादी के सारे इंतजाम को तैयारी बनाने से पूरा किया। आज के बाद पास की कुर्बानी एबिगेल शैनन के लिए खुदा की नजर की जाएगी, जिनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। आज के बाद पास की कुर्बानी मैंगल बरकत के लिए खुदा की नजर की जाएगी। तो खुदा उन्हें अच्छी सेहत से मालामाल करे और उनके इन्फेक्शन को दूर करे। Today's Mass is offered for all the ex-prisoners of Sacred Heart Church, that God will shower His blessing on them. खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा का आज़मा चलता है, आपने ठीक है। के साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज के जिले मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका। खुदावंद तेरी तमजीद हो। और वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो सकई नामी एक मर्द जो सरदार हसन और दौलतमंद था, और उसने ख्वाहिश की कि यीशु को देखे कौन सा है, मगर हजूम के सबब से देख ना सका क्योंकि खोता था। तब आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और उसे देखे, क्योंकि उसी राह से वो जाने को था। जब यीशु इस राह पहुंचा, ऊपर निगाह करके उसने कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। तब वो जल्द उतर कर खुशी से उसे अपने घर ले गया। और लोग ये देखकर सब यूं कहकर इतराज करने लगे कि वह गुनाहगार शख्स के यहाँ जाता है। मगर ज़कई ने खड़े होकर कहा, ऐ खुदावंद, मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ, अगर किसी का माल ना हक लिया है तो उससे चौगुना देता हूँ। तब यीशु ने से कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने इंसान इसलिए आया है कि खोए हुए को ढूंढे और बचाए। अंजीर मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। Sweet is thy show. मेरे सिस्टर भाइयों, आज हम साल के दौरान 31वें इतवार की इबादत में शामिल हैं। आज की पहली तलावत और अंजीर मुकद्दस, खास तौर पर पहली तलावत में पानी का जिक्र है, और वो पानी किसी कुएं का या चश्मे का नहीं, बल्कि पानी हैकल के मजमा से निकल रहा है, दाहिनी तरफ से। मेरे जीजो, हिजकिय्याह नबी का बहुत दौर है जब हैकल थी नहीं, हैकल टूट चुकी थी, ये जिला वतनी में जिंदगी गुजार रहे थे। और वहाँ ये रोया देखता है कि वक्त आएगा कि हैकल के दाहिनी तरफ से पानी निकलेगा, और जहाँ जहाँ वो जाएगा वहाँ जो तबाही बन चुकी है, ज़मीनें बंजर हो गई है, वहाँ पर दरख्त उगेंगे, और वो पानी ज़मीन तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि सहराओं की तरफ जाएगा, फिर जाके समंदर में गिरेगा और समंदर के खारे पानी को भी मीठा कर देगा। यानी इस कदर खुदा का प्यार इंसान के लिए बहेगा कि वो बंजर ज़मीनों में भी सरखेज़ी ले आएगा, वो खारे पानी को भी मीठा कर देगा। बंजर ज़मीन हमारे दिल की है, जिसमें से नफरत और गुस्सा पैदा होता है। खारापन हमारी रूखापन है, जिसमें ना दुआ है, ना शुक्रगुजारी है, ना प्यार है। तो जैसे ही हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, तो हम फलदार हो जाते हैं। आज मेरे चीज़ों हैकल का जिक्र है, हैकल को खुदा का घर कहा गया है। मुक़द्दस पौलुस दूसरी
कलाम में कहता है कि तुम खुदा की हैकल हो। यानी पहली तलावत में हैकल को इमारत कहा गया है कि एक इमारत है। मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि खुदा ना सिर्फ इमारतों में बल्कि तुम में बसता है, तुम खुदा का घर। तो ये दो बातें हैं, इमारत का होना और इमारत में मौजूद लोगों का होना, कि खुदा हर एक में बसता है। हर एक से प्यार करो, हर एक की खिदमत करो और हर एक की मदद करो। मेरे चीज़ों, आज की इंजील मुक़द्दस में ज़कई का जिक्र है और ज़कई आम बंदे की नज़र में एक मुफस्सल है। और मुफस्सल कौन है? जो लोगों से उनकी आमदनी पर टैक्स लेता है। यानी बात और यहूदियों में से जिसे इब्राहिम का बेटा कहा गया है, लेकिन काम रोमी हुकूमत के लिए करता था और इस वजह से रोमी हुकूमत की नज़र में तो बड़ा इज्जत वाला था कि उनको कमाई ला कर देता है, लेकिन अपने लोगों में उसकी इज्जत नहीं। अपने लोगों की नज़रों और दिल ये शख्स हम पर जुल्म करता है सिर्फ अपनी जय जयकार करवाने के लिए। तो जब वो यीशु को मिलना चाहता है, यीशु को देखता है, जन्नत के दरख्त पर चढ़ता है, तो यीशु उसे कहता है नीचे उतर। मेरे चीज़ों, मोहब्बत की निगाह, रहम वाली इल्तिजा इंसान के दिल को बदलती है। और यही वाक़या ज़कई के साथ हुआ। और वो कहते हैं कि मालिक, जिससे मैंने नाम लिया है उससे दुगना देता हूँ, और जिसका मैंने दुगना देना है उसे 4 गुना देता हूँ। यानी जो मोहब्बत मैंने खुदा से ली है, मैं उसे डबल करके बांटूंगा। जितनों के मैंने दिल दुखाए, जितनों का मैं जिम्मेदार हूँ, सबको माफ़ करता हूँ। बल्कि मैं उसे माफ़ करता हूँ, बल्कि उसका खजाना भी बढ़ता हूँ, खजाना भी बढ़ता हूँ। मेरे चीज़ों, ये काम में पैसे का लेंगे और आपको अच्छे से पता है कि उधार देना तो बहुत आसान है, लेकिन उधार लेना बहुत मुश्किल है। तो कई लोगों से पैसे इकट्ठे करके रोमी हुकूमत को खुश करता था, तो लोगों को वो खुश करने के लिए उन्हें डबल दे देता है। और यही हमारी ज़िंदगी में खुदा के कलाम का अमल है कि जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। हमारे जो पत्थर दिल है, बंजर ज़मीन है, वो ज़रखेज़ी में बदलती है, और ना सिर्फ ज़रखेज़ी बल्कि फलदार दरख्त हो जाता है। मेरे चीज़ों, खुदा का घर किस लिए बनाया जाता है? पहला काम दुआ करने के लिए, दूसरा शुक्रगुजारी गुजारने के लिए, और तीसरा अपनी ज़िंदगी या कलाम सुनने के लिए। ये 3 काम है खुदा के घर के। पहला काम दुआ करना, कि हम उस जगह आते हैं जहाँ हम खुदा की हज़ूरी को महसूस करते हैं, दुआ करते हैं, शुक्र करते हैं। दुआ करना, शुक्र करना, और तीसरा काम मैंने क्या बोला था? कलाम सुनना। या कलाम सुनकर हम अपनी अमली ज़िंदगी में उसको अपनी जामा पहनाते हैं। तो आज मेरे चीज़ों, हैकल के साथ साथ हम पर भी 3 काम वाज़ेह हैं जो हमारे अंदर खुदा की हज़ूरी को ज़ाहिर करते हैं कि हम खुदा से ज़िंदगी का पानी लेते हैं। सामरी औरत से जब यीशु पानी मांगता है तो सामरी औरत क्या कहती है कि मैं सामरी होकर तुझे क्यों दूँ, यहूदी होकर तो मुझसे क्यों मांगता है? तो यीशु कहता है कि जो पानी मैं तुझे दूँगा तो कभी प्यासी नहीं होगी। यानी यीशु ही ज़िंदगी का पानी है जो हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमारी प्यास को बुझा देता। लेकिन अगर हम यीशु को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देंगे तो 4 तरह के काम होंगे। पहला कि हमारी खुदा से दूरी है। कैसे पता लगेगा कि मैं बहुत खुदा से दूर हो गया? इंसान दुआ करना चाहिए। जिसकी ज़िंदगी में महसूस हो कि मैं खुदा से बहुत दूर हूँ, पहला काम तो दुआ करना छोड़ दे। दुआ के लिए उसके पास वक्त नहीं है।
दूसरा काम वो शुक्र अदा करना खत्म कर देगा, शुक्र ही करेगा ना शुक्रों की तरह जो मिलता है उसके लिए आदत है। तीसरा काम उसकी जिंदगी में क्या होगा कि वो प्यार करना छोड़ देगा, मोहब्बत करना, माफ करना, कबूल करना। ये खुदा की गैर मौजूदगी की निशानी है इंसान की ज़िंदगी में कि अगर इंसान मोहब्बत करने से कासिर हो जाए, कबूल करने से कासिर हो जाए, बर्दाश्त करने से कासिर हो जाए, तो वो खुदा की गैर मौजूदगी है इंसान में। तो फैक्टर्स का मकसद क्या था कि खुदा इंसान से मिल जाए। इसलिए यीशु भी कहते हैं, जो मैंने जेल पढ़ी उसमें लिखा था कि तुम इस हैकल को डाल दो, 3 दिन तक खड़ा कर दूंगा। और यहूदी कहते हैं कि 40 बरस इसको खड़ा करने में लगे, तुम 3 दिन में कैसे खड़ा करेगा? तो यीशु कहता है कि ये जिस्मों की हैकल है जिसके अंदर खुदा बसता है, तुम मारोगे या तीसरे दिन जियोगे। तो मेरे चीज़ों, आज जो इज़िकियल नबी की किताब है उसमें हैकल का जिक्र इसलिए बार बार है क्योंकि यहूदी दुआ करने को तरस गए थे, खुदा का घर की ज़ियारत करने को तरस गए थे, कहाँ वादा की सरजमीन छोड़कर मंदिरों में रहने लगे और कहते हैं कि वहाँ से कलाम, वहाँ से नदियाँ बहेंगी और हमारे मंदिरों में भी दरख्त हो जाएंगे। यहाँ तक के मुर्दार समंदर है, नमक से भरा हुआ है, ये भी मीठा हो जाएगा। क्या खूबसूरत पेशन हुई है यीशु के आने की, यीशु की मौजूदगी की, कि वो जिंदगी का पानी है जो किसी मिलेगा वो कैसा नहीं। और आज हम सब भी इसी ज़ियारत में शामिल होकर अपनी रूहानी प्यास को बुझाएंगे। हम इस हैकल में अपनी रूहानी प्यास, जिंदगी के पानी को हासिल करेंगे और खुदा के हज़ूर हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेंगे। तो खुदा इस कलाम के मुताबिक आपको ज़िंदगी बसर करने का फज़ल दे। हम सब पर रहम कर खुदा की मुबारक हमारे वाले हज़रत यूसुफ उसके हमारे पास जबर मुबारक रसूल और उन सब रसूल के साथ जो जहाज के मजदूर करते हैं, हमेशा की ज़िंदगी में और के रिश्ता से हमको सलाम उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी मेरे किताब में खुदा आपको उसकी महारानी में कामयाबी से ताज़ीम कायम है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आज हम अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे ईमान में उसी के साथ वो खुदा करे जैसे खुदा ने हमें सिखाया। शरीक होकर रसूलुल्लाह और तेरी मेहरबानी से वादा किए हुए सवाब को हासिल करने के काबिल है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा बाप और बेटे और इसकी बरकत आप सब पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत खत्म हुई, खुशी और सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. Here I would like to especially remember our ex-parishioners who has been the part of our community of Sacred Heart Parish. So I would like to offer prayers for the departed soul of your beloved ones and loved ones. May their soul rest in peace, and also we remember your families as well, and we miss you. May God bless you all. May you live happy life there, and also all the problems may be solved by the grace of God. And also I would like to thank all of you that you remember us, and we keep on praying for you. God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.